Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students. I welcome you all to the first lecture of the course of Electronic Devices and Circuits. It has the course code of EL236. This course is actually an advanced course and a continuation of the course of the basic electronics that you studied in your last semester. So since this is an advanced course, we expect complex circuits, complex calculations and complex numericals. So this course actually needs more attention and more concentration if you really want to understand and pass this course. So these are the course contents of the course of EDC. Please note that in the last semester, MOSFET or the amplifiers based on MOSFET was your last topic ना, वो एक तरह से बिल्कुल end में था. Here the amplifiers based on MOSFET is your first topic. It means that all the other topics coming after that will be based on amplifiers. So we need to recap, we need to study with more concentration the MOSFET based amplifiers that we did in the last semester. In fact, if you can recall, I taught just a few MOSFET based amplifiers. Two of them I think were common source amplifiers and one of them was a common gate amplifier. Now we will not only revise the previous concepts, but we will also be doing some more MOSFET based amplifiers, including the common drain amplifier that we didn't do in the last semester. Then we will be having logic inverter, we will be studying the other type of transistors, BJTs, we will be studying differential amplifier, both the BJT and the MOSFET based. There will be some current sources and active loading. One thing is very clear after looking at this course outline is that the course outline is very vast. I mean, there are a lot of topics to be covered and all of them are quite difficult. So our pace inshallah will be such that we can cover all the course in 10 weeks time, as I have heard that for the first 10 weeks we will be doing the theory only and the remaining 4 weeks will be for your practical. So we have to cover all these topics in first 10 weeks. Before I actually start with the FET based amplifiers, I will be recapping the concepts that we are going to use for MOSFETs. For example, I will be discussing the significance of DC and the AC analysis, some basic concepts regarding the MOSFET based amplifiers, and then we will be continuing the numericals of amplifiers. This is just a revision concept and I think most of you must be familiar with it, that when we write the actual symbol and the subscript both in capital form, that represents a DC signal. When we write both the actual alphabet, actual term and the subscript in the small alphabetical order or in the small letter, then that represents an AC signal. When we have the main alphabet in a small letter and the subscript in capital letter, then that represents the complete signal, that means DC plus AC. So if I write this term VGS, which represents the complete signal, it should be the sum of the DC VGS and it should be the sum of the AC VGS. यानी DC और AC का जो combination होगा, that is actually represented with this symbol that represents the complete or the total DC plus AC signal. Significance of DC signal, this might be clear to many of you,
because this was as in the paper as well. One thing is very clear, that we need the DC signal because that helps us to turn on the device. If the device is not on, if the MOSFET is not on, it will not be able to work. So the purpose of DC signal is to first of all turn the device, and when it turns on the device, it brings the device into any specific mode of operation. For example, the DC voltages may bring the MOSFET into triode or they may bring it into saturation. किसी भी एक मोड में लेके जा रहा होगा. So the purpose of DC signal is to turn on the device in our desired mode of operation, either in triode or in saturation. What is the significance of AC signal? Please note that there is no restriction if we apply AC signal in place of the DC signal. ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि मैं DC की जगह AC अप्लाई नहीं कर सकती. I certainly can apply AC signal in place of the DC signal. But what will be, the impact of that AC signal? The impact will be, since the AC signal continuously changes its value, therefore the voltages applied on the different terminals of MOSFET will continuously be changing. This means that the MOSFET's mode of operation will also be continuously changing, because it is the voltage that brings the MOSFET into a specific mode. If that voltage is continuously changing, how will the MOSFET maintain a constant mode? मेरी बात समझ में आ रही है? AC वोल्टेज को DC वोल्टेज की जगह मैं अप्लाई कर दूं और ये सोचूं कि MOSFET को एक स्पेसिफिक मोड में लेके जाना है, लेकिन MOSFET स्पेसिफिक मोड में AC की वजह से कैसे जा सकता है? क्योंकि AC का वोल्टेज कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, वैल्यू बार बार चेंज हो रही है. अब एक पॉइंट पर वैल्यू बार बार चेंज हो रही है, तो हो सकता है कि कभी किसी वोल्टेज के ऊपर MOSFET सैचुरेशन में हो, कभी ऐसा हो सकता है कि गेट का वोल्टेज ज़्यादा हो रहा हो, कभी गेट का वोल्टेज कम हो रहा है, कभी ड्रेन का वोल्टेज ज़्यादा हो रहा है, कभी ड्रेन का वोल्टेज कम हो रहा है. तो हर एक इंस्टेंस के ऊपर MOSFET का जो मोड ऑफ ऑपरेशन है वो चेंज हो रहा है विद द हेल्प ऑफ AC सिग्नल. इसी वजह से व्हाट वी डू नॉट अप्लाई AC सिग्नल टू टर्न ऑन द MOSFET को टर्न ऑन कराने के लिए हम AC सिग्नल इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए कि हम कंटिन्यूसली MOSFET को एक ही मोड में रखना चाहते हैं जब एक दफ़ा ऑन कराते हैं. तो ये काम किससे आसानी से हो सकता है? ये DC सिग्नल से आसानी से हो सकता है, और इसी वजह से हम ऑन कराने के लिए DC सिग्नल को इस्तेमाल करते हैं रादर देन AC सिग्नल. हाँ, देयर कैन बी सम वेरी स्पेसिफिक एप्लीकेशंस where we will be using AC signal to turn on द ट्रांजिस्टर, और वो BJT में आएगा आप लोगों के पास, और आई थिंक शायद क्लास A क्लास B एम्पलीफायर वगैरह कहीं आगे जाके पढ़ेंगे तो उसमें यूज़ होगा, इस वक्त नहीं. लेकिन मेरा कहने का मकसद है कि ऐसा नहीं है कि जहाँ हम DC सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं वहाँ AC अप्लाई करना पॉसिबल नहीं है. इट इज़ 100% पॉसिबल, बट देन द MOSFET विल बी स्विचिंग इट्स स्टेट एवरी नाउ एंड देन, दैट वी डू नॉट वांट. That is why, in order to keep the MOSFET in a specific mode for all the time, we are applying the DC voltage and we are turning it on with the DC voltage. Anyways, this point I think is clear. AC signal so AC is actually the signal that we want to get amplified through the amplifier. Okay, now MOSFET circuits can have different type of scenarios. For example, I have discussed the first scenario in this slide, where we can see that only DC voltages like this plus 2.5, 0 volt and minus 2.5, only DC voltages have been applied on the circuit. In this case, where only DC voltage is applied, we perform the DC analysis only. This means that we calculate only the DC parameters, including the ID current, the drain voltage, the gate voltage and the source voltage. When only DC supplies are applied, we can only calculate the DC parameters from the MOSFET, and this analysis is called as the DC analysis.
This is another scenario. We can have MOSFET based circuits with both the DC supplies, for example this VDD, this ground, this VGS, as well as with AC supply, for example this AC VGS. So circuits having both DC and AC things, AC supplies. For such circuits, we can perform both the DC and the AC analysis because both the AC and DC supplies are present in the circuit. In this case what we do, we perform both the analysis one by one. पहले हम DC analysis करते हैं and then we do the AC analysis. While performing the DC analysis, what we have to do, we remove all the AC supplies. This means that for this circuit, if I try to perform the DC analysis, I will be removing this AC supply. And if I will be doing the AC analysis, I will be removing all the DC supplies including this VDD and this VGS. प्लीज़ रिमेंबर कि DC के वक्त AC सप्लाईज हटाते हैं और AC के वक्त DC सप्लाईज हटाते हैं. कभी भी वोल्टेज की सप्लाई को हटाना हो, दैट इज़ ऑलवेज शॉर्ट सर्किटेड. Whenever you want to remove any current supply, you always open circuit it. ठीक है, तो वोल्टेज सोर्स को हटाने का तरीका क्या है, उसे शॉर्ट सर्किट करें. करंट सोर्स को हटाने का तरीका ये है, उससे ओपन सर्किट करें. नाउ the supply situation has been discussed. Let us see what will be the status of the capacitor if they are present in the circuit. यानी कि इस सर्किट के अंदर अभी तो बना हुआ नहीं है, but there can be capacitor present in the circuit. We also want to see what will be the status of the capacitor in DC analysis. So please note here X is equal to 1 over 2 pi Fc represents the reactance of the capacitor. Since during the DC analysis the frequency of the incoming signal is 0, therefore the F value becomes 0. This whole terms denominator becomes 0, तो 1 over 0 जो है वो basically infinity के बराबर होता है. This means that the reactance of the capacitor becomes infinity during the DC analysis. तो infinite रिएक्टेंस होने का मतलब क्या है, एक तरह से रिएक्टेंस क्या इम्पीडेंस ही है ना. तो इनफाइनाइट इम्पीडेंस होने का मतलब ये है कि वो चीज़ ओपन सर्किट हो गई है. सो इफ़ आई विल बी परफॉर्मिंग द DC एनालिसिस एंड आई विल बी इनकाउंटरिंग एनी capacitor, I will be simply open circuiting it because the frequency will be 0 and the capacitor will be behaving as an open circuit. Now after performing the DC analysis, we will be performing the AC analysis during which we will be removing all the DC sources. ये एक DC sources नज़र आ रही है, ये एक DC source नज़र आ रही है. इन दोनों को आप remove करेंगे because you are now trying to perform the AC analysis. ठीक है, सिर्फ AC की सोर्स रखेंगे. अगेन द सेम थिंग विल बी एप्लीकेबल that the voltage sources which are DC in nature will be short circuited and the current sources which are DC in nature will be open circuited. ये सब यहाँ लिखा हुआ है. Also during the AC analysis, what will be the status of the capacitor? The reactance of the capacitor will be again governed by the same formula 1 over 2 pi Fc. What we do is we assume that the capacitor present in the circuit will have a very high value of capacitance and the frequency of the AC signal is also high. So 1 over 2 pi into a very large value, इसका मतलब है डिनोमिनेटर की वैल्यू बहुत ज़्यादा लार्ज हो गई क्योंकि F भी बहुत ज़्यादा है, C भी बहुत ज़्यादा है. तो 2 पाई FC बहुत ज़्यादा जब हो गया तो 1 ओवर अ वेरी लार्ज वैल्यू गिव्स अस XC अप्रॉक्सीमेटली 0 ओम. तो किसी भी चीज़ की रिएक्टेंस का 0 ओम आ जाने का मतलब क्या है, इट इज़ सर्विंग और एक्टिंग एज अ शॉर्ट सर्किट. सो व्हाट वी सी दैट during the AC analysis the capacitors become short circuited. Okay, one thing is that the method I have just discussed is only applicable when I solve a circuit on a copy. When we solve on a copy, we perform the DC analysis separately and we perform the AC analysis separately. अलग अलग हम करते हैं कॉपी पे DC और AC analysis. लेकिन
अगर हम यही चीज़ प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे तो मैं ये कहूँ कि मैं डीसी एनालिसिस करते वक्त एसी को ऑफ रखूँगी और एसी एनालिसिस करते वक्त डीसी को ऑफ रखूँगी प्रैक्टिकली जब मैं लैब में परफॉर्म कर रही हूँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए पॉसिबल नहीं है बिकॉज ड्यूरिंग द डीसी एनालिसिस तो हो जाएगी चले एसी के बगैर, क्योंकि डीसी का काम है मॉसफेट को ऑन कराना। लेकिन अगर मैं एसी एनालिसिस करते हुए प्रैक्टिकली अपना डीसी सिग्नल्स को सारे ऑफ कर दूं तो क्या होगा, वो मॉसफेट ऑन ही नहीं होगा। और जब वो मॉसफेट ऑन ही नहीं होगा तो मैं उस पर कितना भी एसी अप्लाई करूं, मॉसफेट उसको एम्पलीफाई करके नहीं दिखा रहा होगा। तो एक चीज़ मुझे पता चल गई कि कॉपी पे सॉल्व करने के लिए तो हम डीसी करते वक्त एसी को ऑफ करते हैं, एसी करते वक्त डीसी को ऑफ करते हैं। दिस इज़ अ कॉपी मेथड। प्रैक्टिकल मेथड में डीसी एनालिसिस करते वक्त डीसी के सारे वोल्टेजेस अप्लाइड होने चाहिए, एसी भी अप्लाई होगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होगा। और एसी एनालिसिस करते वक्त हर हाल में डीसी वोल्टेजेस अप्लाइड रहने चाहिए ताकि मॉसफेट ऑन हो और एसी को एम्पलीफाई कर रहा हो। Okay, we should also recall that during the DC analysis we calculate some parameters including the gate voltage, source voltage, the drain voltage, the drain current. We can also calculate the transconductance of the MOSFET. Please note that this transconductance Gm is a parameter that will be used in the calculation of gain। अगर आपको थोड़ा याद हो, ये Gm का जो फैक्टर है गेन की कैलकुलेशन में यूज़ होता है। प्लीज़ नोट कि Gm के अंदर जितने भी पैरामीटर्स हैं, यहाँ तक के जो जितने नज़र आ रहे हैं, दे आर ऑल कांस्टेंट पैरामीटर्स। W फिक्स है, L फिक्स है, म्यू एन सी ओ एक्स सब फिक्स है। द रिमेनिंग ऑल पैरामीटर्स आर DC in nature. This means that the transconductance of a MOSFET, although it is used in AC analysis, but it is calculated during DC analysis because it depends on all the DC parameters. Although this factor will be used in AC analysis to calculate the gain, but it is calculated from all the DC parameters। ये सारे के सारे DC parameters से इस्तेमाल कैलकुलेट हो रहे हैं, इस वजह से हम DC में कैलकुलेट करते हैं। In a similar manner, the value of R naught is used in the calculation of gain, but we calculate it during the DC analysis as it is dependent on all the DC parameters. Now during the AC analysis, and a better word for the AC analysis is the small signal analysis। AC analysis के लिए मैं यहाँ स्मॉल सिग्नल एनालिसिस का वर्ड भी यूज़ कर रही हूँ। इसकी वजह ये है कि जो AC सिग्नल आप इस मॉसफेट पे अप्लाई कर रहे हैं ये लार्ज एम्पलीट्यूड का नहीं है, इट हैज़ अ स्मॉल एम्पलीट्यूड। तो in order to make this thing very clear that during the AC analysis we are not applying a very large signal but a very small signal, so better to write the AC analysis as the small signal analysis. Okay, during the small signal analysis what we do, we calculate the input resistance, output resistance, voltage gain and current gain of the amplifier. Okay, now we will see the different types of capacitors. This has also been discussed earlier. Coupling capacitor are those capacitors that are actually sending the signal from one point to the other. For example, ये एक coupling capacitor है जो इस point से लेके इस point तक सिर्फ data को signal को transmit कर रहा है। In a similar manner, जो signal यहाँ produce हो रहा होगा, coupling signal सिर्फ उसको आगे forward कर रहा है। Now, what is the significance of coupling capacitor? Of course it is forwarding the signal from one point to other. The important thing is कि during the DC analysis, जब कभी भी DC analysis होगी इस कैपेसिटर का क्या बिहेवियर होगा, DC सिग्नल के लिए ये हमेशा ओपन हो जाएगा। अगर ये ओपन होगा तो क्या होगा, ये पूरी की पूरी दिस कंप्लीट ब्रांच विल बी रिमूव्ड। अब आप अगर देखें कि इस कैपेसिटर के लगने से क्या हो रहा है, इस कैपेसिटर के रिमूव होने से पूरी AC की ब्रांच रिमूव हो जा रही है और सिर्फ DC वाला पोर्शन जो है वो बच जा रहा है, क्योंकि ये भी रिमूव हो जाएगा ड्यूरिंग द DC और ये भी रिमूव हो जाएगा ड्यूरिंग द DC। तो कपलिंग कैपेसिटर का काम इन रियल सिनेरियो, इट सेपरेट्स द DC एंड AC सिग्नल्स।
क्या कर रहे हैं कि जब ये कैपेसिटर यानी कि ओपन सर्किट होगा तो ये जो एसी वाला पार्ट है खुद ब खुद से डीसी पार्ट से रिमूव हो जाएगा। ये वाला जो एसी पार्ट है खुद ब खुद से डीसी पार्ट से रिमूव हो जाएगा और जो रिमेनिंग आपके पास बचेगा वो डीसी बच रहा होगा। ये हम क्यों करते हैं, किस लिए लगाते हैं? ये इसलिए लगाते हैं कि यहाँ से आने वाला डीसी सिग्नल, ये जो यहाँ से वीडीडी चल रहा है, ये किसी वक्त इस पॉइंट पे भी तो पहुँच रहा होगा ना। इस वीडीडी का इस आरडी के थ्रू, इस आरजी के थ्रू कुछ ना कुछ इफेक्ट डीसी वोल्टेज यहाँ पे भी पहुँच रहा होगा। अगर मैं यहाँ पे ये कपलिंग कैपेसिटर ना लगाऊं, प्लीज़ ट्राई टू लिसन टू दिस केयरफुली। अगर मैं ये कपलिंग कैपेसिटर ना लगाऊं तो क्या होगा? ये जो एसी सोर्स आके लगी है, ये डीसी वोल्टेज इस एसी सोर्स को भी वोल्टेज प्रोवाइड करना शुरू कर देगा। दैट कैन बी डैमेजिंग फॉर दिस एसी सोर्स। तो होगा क्या कि जब कभी भी आपने अपने डीसी वाले सर्किट के दरमियान और एसी सोर्स के दरमियान ये कपलिंग कैपेसिटर लगाया होगा, तो इस कैपेसिटर की वजह से ये डीसी सिग्नल कभी भी इस एसी सोर्स तक नहीं पहुंच सकेगा। That is, in other word, it is helping in saving the AC source। ये AC सोर्स को एक तरह से सेव करने के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है कि जैसे ही ये रिमूव होगा, क्योंकि ये डीसी जैसी सिग्नल यहाँ पहुँचेगा, डीसी सिग्नल के लिए कैपेसिटर ओपन का काम करेगा, तो अब ये सिग्नल यहाँ से यहाँ नहीं पहुँच सकेगा और ये डीसी सिग्नल किसी भी तरह से AC सप्लाई को ख़राब नहीं कर सकता। ठीक है, तो कपलिंग कैपेसिटर इज नॉट ओनली ट्रांसमिटिंग द सिग्नल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, इट इज ऑल्सो हेल्पिंग इन सेपरेटिंग द डीसी एंड एसी सिग्नल। इन अदर वर्ड, इट इज प्रोटेक्टिंग द एसी सप्लाईज। अच्छा, बाईपास कैपेसिटर। बाईपास कैपेसिटर क्या है? किसी भी कंपोनेंट के पैरेलल में अगर आके एक कैपेसिटर लग जाए तो क्या होगा कि ड्यूरिंग द एसी एनालिसिस दिस कैपेसिटर विल बी अ शॉर्ट सर्किट। ठीक है, अब करंट जो यहाँ से आ रहा है, इट हैज़ टू पाथ्स टू गो फ्रॉम। फॉर एग्जाम्पल, इट कैन आइदर गो थ्रू दिस रेजिस्टर और इट कैन गो थ्रू दिस कैपेसिटर। प्लीज़ नोट दैट करंट ऑलवेज फॉलो द लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ। तो होगा क्या कि ये कैपेसिटर, चूँकि इसकी रिएक्टेंस इतनी कम हो चुकी होगी, ये शॉर्ट सर्किट के तौर पे बिहेव कर रहा होगा, तो करंट को इस रास्ते में रेजिस्टेंस नज़र आएगी, ये रास्ता बिल्कुल बगैर रेजिस्टेंस के नज़र आएगा। तो करंट बेसिकली इस रास्ते से गुजरना चाहेगा, यहाँ से इनफेक्ट गुजर जाएगा एंड इट विल सिंपली लीव दिस रेजिस्टेंस, इट विल नॉट गो थ्रू दिस रेजिस्टेंस। तो हुआ क्या कि बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द कैपेसिटर इन पैरेलल टू दिस रेजिस्टर, ये इसका इफेक्ट बाईपास हो गया, इसको कंसीडर ही नहीं किया गया, इसको रास्ते से हटा दिया गया। इन अदर वर्ड्स, तो जब कैपेसिटर किसी भी कंपोनेंट के पैरेलल में आके लगे और उसको रास्ते से हटा दे और करंट कैपेसिटर के थ्रू गुजर जाए, देन सच अ कैपेसिटर इज एक्चुअली कॉल्ड एज अ बाईपास कैपेसिटर। ठीक है, सो हियर वी हैव रिवाइज सम ऑफ द कंपोनेंट कॉन्सेप्ट्स, वी विल बी कंटिन्यूइंग इट इन द नेक्स्ट स्लाइड्स। Okay, so now we will quickly revise that when we have a circuit comprising of both the DC and the AC supplies, then what will be the behavior of the signals at the different terminals. Please note that there is a DC voltage applied on the gate, there is an AC voltage applied on the gate। ठीक है, गेट पे डीसी एसी दोनों मौजूद हैं। इसी वजह से जो ड्रेन पे होगा मॉसफेट के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा होगा वो भी डीसी एसी नेचर का होगा और डेफिनेटली जो वोल्टेज ड्रेन पे प्रोड्यूस हो रहा होगा वो भी डीसी प्लस एसी नेचर का होगा। होगा क्या, देखिए प्लीज़ नोट कि मैंने ये VGS बना दिया है, यहाँ पे ये VDS है। VGS, ये VGS कंप्लीट VGS को इंडिकेट कर रहा है, दैट विल बी द सम ऑफ दिस DC VGS एंड दिस AC VGS। गेट के ऊपर जो टोटल वोल्टेज होगा वो DC और AC वोल्टेज का सम होगा। कैसे सम होगा? आमतौर पे आपको ये आइडिया है दैट व्हेन एवर यू जनरेट एनी सिग्नल फ्रॉम एनी साइन वोल्टेज सोर्स, तो वेव क्या होती है, 0 वोल्ट के ऊपर नीचे बन रही होती है। ठीक है, बट हेयर यू सी दैट सिंस अ DC गेट वोल्टेज हैज़ ऑल्सो बीन अप्लाइड, तो जो DC गेट वोल्टेज है वो सेंटर लाइन बन गया और जो AC गेट वोल्टेज है वो उसके इर्द गिर्द या उसके अबाउट बन रहा है। सो
what is the importance or the significance of applying both the DC and AC is that the DC signals becomes the center line or the reference line, and then the AC signal rides over it or rides about it, उसके इर्द गिर्द में बन रहा होता है। ठीक है, तो अब मैं कह सकती हूँ कि DC की वैल्यू ये है, ठीक है, मैक्सिमम सिग्नल गेट पे जो होगा वो इस DC और इस AC का सम होगा। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि ये गेट वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू इंक्लूडिंग द DC प्लस द AC, ठीक है। और क्या मैं कह सकती हूँ कि ये गेट वोल्टेज की मिनिमम वैल्यू है जिसमें कि इंक्लूड कर रहा है DC और AC दोनों, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली इफ दिस इज रिप्रेजेंटिंग द ड्रेन वोल्टेज, तो देखें ये जो ड्रेन वोल्टेज है ये DC ड्रेन वोल्टेज सेंटर लाइन बन गया, ठीक है, और AC ड्रेन वोल्टेज इसके ऊपर बनना शुरू हुआ, ठीक है। इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि मैं कह सकती हूँ कि ड्रेन वोल्टेज की टोटल मैक्सिमम वैल्यू ये है और ड्रेन वोल्टेज की टोटल मिनिमम वैल्यू जो है वो ये है। ये वैल्यू क्या होगी, DC ड्रेन वोल्टेज प्लस ये जो भी ऑफसेट आ रहा है, ये यहाँ की ये मैक्सिमम वैल्यू होगी, और ये वैल्यू क्या होगी, DC में से ये जो ऑफसेट सब्ट्रैक्ट करेंगे ये ड्रेन वोल्टेज की मिनिमम वैल्यू होगी, ठीक है। प्लीज़ नोट कि ये जो VD मिनिमम की मैं बात कर रही हूँ ये टोटल का सिंबल लिखा हुआ है कि एक्चुअल अल्फ़ाबेट स्मॉल में है और जो सबस्क्रिप्ट है वो कैपिटल में लिखा हुआ है। अच्छा, इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि वेन एवर वी डिज़ाइन एनी मॉसफेट, what we do, we assume that और वी ट्राई टू कीप द मॉसफेट इन सैचुरेशन रीजन। हम कोशिश करते हैं कि VDS ग्रेटर देन VGS माइनस VT रहे ताकि ये जो मॉसफेट है ये सैचुरेशन में रहे। DC के केस में तो एडजस्ट करना आसान है कि भाई VDS को VGS माइनस VT से बड़ा रख लिया, एडजस्ट हो गया। लेकिन तब क्या होगा जब DC के साथ एक AC सिग्नल भी हर टर्मिनल पे नज़र आ रहा है, जैसा कि ये गेट टर्मिनल पे और जैसा कि ये ड्रेन टर्मिनल पे। हाउ विल यू एडजस्ट द मोड ऑफ ऑपरेशन when you have both the DC and AC signals on the gate and the drain terminal? This is a bit challenging. तो करना क्या होगा, आपको हर हाल में ड्रेन का जो वोल्टेज है वो गेट के वोल्टेज से ज़्यादा रखना है, ठीक है। हम क्या चाहते हैं कि सैचुरेशन के लिए VDS वोल्टेज हर हाल में VGS से ज़्यादा हो। वो कैसे हो सकता है कि ड्रेन का वोल्टेज अपनी मिनिमम तरीन वैल्यू पर भी आ जाए तो भी वो गेट की वैल्यू से ज़्यादा हो तो सैचुरेशन मेंटेन रहेगी। तो अब मैंने यहाँ पे ज़रा एक एक्सप्रेशन लिखी है, वो क्या लिखी है, मैंने कहा है ड्रेन का वोल्टेज अपनी मिनिमम तरीन वैल्यू पर भी आ जाए तब भी वो ज़्यादा होना चाहिए किससे, गेट का जो मैक्सिमम तरीन वोल्टेज आ रहा है उससे माइनस VT। अगर मैं समहाउ ये सिनेरियो मेंटेन कर लूँ, और ये देखें ये टोटल के फॉर्म में लिखा हुआ है, ये सारी कंडीशन टोटल की फॉर्म में लिखी है कि ड्रेन का मिनिमम वोल्टेज DC प्लस AC अगर ज़्यादा रहता है गेट के मैक्सिमम वोल्टेज से जो कि DC प्लस AC से हासिल हो रहा है और माइनस VT से, तो सैचुरेशन रीजन मॉसफेट मेंटेन रखेगा। तो पता ये चला कि जब आपके पास सिर्फ DC सिग्नल है तब तो चलो मोड एडजस्ट करना आसान है, लेकिन अगर आपके पास DC प्लस AC बोथ सिग्नल्स अवेलेबल हैं, इन दैट केस आप VD की टोटल मिनिमम वैल्यू को भी ज़्यादा रखेंगे हर हाल में VG मैक्स माइनस VT से, ताकि वो मॉसफेट सैचुरेशन में वर्क कर रहा हो। ओके, नाउ वी क्विकली स्विच टू द डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल्स। हाइब्रिड पाई मॉडल है ये आपका, you are quite familiar with it. This is the gate terminal, source terminal, drain terminal. VGS जो है वो गेट और सोर्स के दरमियान जो AC वोल्टेज है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये एक डिपेंडेंट करंट सोर्स है। डिपेंडेंट करंट सोर्स का मतलब है कि इसमें GM जो है वो एक कांस्टेंट पैरामीटर के तौर पे एक्ट कर रहा है, और ये डिपेंडेंट करंट सोर्स का करंट कैसे चेंज हो रहा है, VGS की वजह से चेंज हो रहा है। जैसे जैसे ये VGS चेंज होता जाएगा वैसे वैसे GM VGS की वैल्यू चेंज होती जाएगी, यानी इस करंट सोर्स की वैल्यू। तो पता क्या चल रहा है कि मॉसफेट के अंदर गेट टू सोर्स का वोल्टेज ड्रेन करंट को चेंज कर रहा है। GM VGS ज़रा सा पीछे अपने पास पुराने लेक्चर्स चेक कीजिएगा। GM VGS दर हकीकत मॉसफेट के ड्रेन करंट की इक्वेशन है, ठीक है।
तो मॉसफेट के अंदर गेट टू सोर्स वोल्टेज एक्चुअली में ड्रेन करंट को चेंज कर रहा है, जो कि डिपेंडेंट है स्मॉल VGS की वैल्यू के ऊपर। Okay, this model is without the channel length modulation effect and this is with channel length modulation effect। जब channel length modulation का effect लेते हैं तो हम एक R0 resistance लगा देते हैं, जो कि ये R0 VA over ID से कैलकुलेट होता है। ये channel length modulation क्या है मैं भी थोड़ी देर में डिस्कस करती हूँ। GM अभी थोड़ी देर पहले आई डिस्कस के इट इज़ एक्चुअली ट्रांसकंडक्टेंस, it is used during the AC analysis but calculated with the help of DC parameters। तो देख लें यहाँ 2ID VGS minus VT, this is one formula, this is another formula for GM, both are using only DC parameters for the calculation। तो हम ये DC के दौरान कैलकुलेट करेंगे, AC में इस पैरामीटर को यूज़ करेंगे। Another model which is the T model, since it looks like a T is called a T model। इसमें ये जो 1/GM है ये वो रेजिस्टेंस है जो सोर्स टर्मिनल पे अपीयर हो रही है। Basically if you try to observe or if you study Cedra and Smith in more detail, you will come to see that both the pi and the T model are actually the same। They are equivalent। कुछ डेरिवेशंस करेंगे तो दोनों मॉडल्स को हम इक्वल प्रूफ कर सकते हैं, हम इस डिटेल में इस वक्त नहीं जा रहे। बहरहाल यहाँ पे भी ये जो ID करंट है, इन अदर वर्ड्स सोर्स और गेट के दरमियान जो वोल्टेज है उसी पे डिपेंडेंट है और डिपेंड करता है कि ये वोल्टेज क्या है। ठीक है, GM का फॉर्मूला यही है। अगर R0 जो है चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन आप कंसीडर कर रहे हैं तो दिस विल बी द लोकेशन ऑफ R0, इट ऑलवेज अपीयर्स बिटवीन द सोर्स एंड द ड्रेन टर्मिनल। और अगर चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन को आपने नेग्लेक्ट किया हुआ है तो R0 जो है रिमूव हो जाएगा। अच्छा, प्रीवियसली सेड्रा के अंदर पुराने वर्जन्स के अंदर उन्होंने पाई मॉडल यूज़ किया हुआ था कॉमन सोर्स एम्पलीफायर, कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर के लिए, और टी मॉडल उन्होंने यूज़ किया हुआ था कॉमन गेट एम्पलीफायर के लिए। बट नाउ दे हैव चेंज द सिनेरियो। बहरहाल जिस मेथड से सेड्रा में सॉल्व किया वी विल बी सॉल्विंग विद द सेम मेथड इंशाल्लाह। These are the three different types of amplifiers that can be made with the help of MOSFET। These are the basic amplifiers। When we apply input on the gate and collect output from the drain terminal, leaving the source terminal to be common or unconnected for any type of input output, then such an amplifier is called as a common source amplifier। In a similar manner, when we apply input on the source terminal, collect output from the drain terminal, and there is no AC or AC signal on the gate terminal, then such an amplifier is called as the common gate amplifier। And similarly, when you apply input on the gate and collect the output from the source terminal, the drain terminal does not have any kind of AC signal applied, then such an amplifier is called as a common drain amplifier। Please note that these are predefined amplifier configurations, we cannot change them, that I decide to take the output from the gate and applying giving the input signal on the drain terminal and I call it as a common source amplifier। No, that's not true। I cannot change the location of the input and output terminals in all of these amplifiers, these are predefined configurations। So now we will be switching to the first type of amplifier in the next slide। Okay, now we are going to solve another common source amplifier circuit, but the good thing in this circuit is that no parametric value is given। पैरामीट्रिक कोई वैल्यू गिवन नहीं है, VDD की वैल्यू नहीं पता, RD नहीं पता, R सिग्नल नहीं पता, RG नहीं पता, इन सब की वैल्यूज RD RL की जब पता नहीं है तो देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ परफॉर्मिंग द DC एनालिसिस। जब कभी भी आपको सिर्फ एक ऐसा सर्किट दिया जाए जो कि कहा ये जा रहा है कि कॉमन सोर्स एम्पलीफायर है, ठीक है फाइन, लेकिन कोई पैरामीट्रिक वैल्यू गिवन नहीं है, इसका मतलब है यू विल बी जंपिंग डायरेक्टली टू द AC एनालिसिस, यू विल नॉट बी परफॉर्मिंग DC एनालिसिस, बिकॉज वी वर डूइंग दैट एनालिसिस ओनली टू फाइंड आउट द डिफरेंट पैरामीटर्स लाइक द ड्रेन गेट सोर्स वोल्टेजेस, द ड्रेन गेट and the drain current we were actually trying to find from there। We also tried to calculate the value of GM and or not from the DC analysis। But if the parametric values are not here, it means that के कोई पैरामीटर जब आप कैलकुलेट कर ही नहीं सकते DC में तो उसका कोई क्वेश्चन ही नहीं है। ठीक है,
तो क्लियरली गिवन है परफॉर्म द एसी एनालिसिस फॉर द गिवन सर्किट। ठीक है, हम डायरेक्टली एसी एनालिसिस पे चलेंगे और हम इसी सर्किट के अंदर से एक्सट्रैक्ट आउट करेंगे वो पार्ट जो हमें एसी में चाहिए। अच्छा, अब सबसे पहले तो ये देखें कि ये जो वीडी है इसकी जगह ग्राउंड आ जाएगा, ये रहा। ये कैपेसिटर शॉर्ट हो जाएगा, वी नॉट आ जाएगा, कैपेसिटर शॉर्ट हो गया, वी नॉट आ गया, आर एल। अच्छा, इस पार्ट पे मैं भी आती हूँ। ये आर जी एज इट इज़ रहेगी, ये रही। कैपेसिटर शॉर्ट हो गया, आर सिग्नल एज इट इज़, आर सिग्नल आ गया, वी सिग्नल एज इट इज़। अच्छा, एक बात, इनपुट सोर्स का नाम वी सिग्नल लिखा हो, वी एन लिखा हो, वी आई लिखा हो, इससे उसकी क्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसकी जो एनालिसिस की जाती कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर पेपर में मैं वी सिग्नल की जगह यहाँ इवन वी ए भी लिख के दे दूँ, वी एन स्मॉल ए, तो इसका मतलब है आपने वी नॉट ओवर वी ए का रेशो निकालना है। अगर मैं यहाँ वी सिग्नल के बजाय वी जेड लिख दूँ, वी स्मॉल जेड, तो मुझे वी नॉट अपॉन वी जेड निकालना है। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस एट दिस टाइम हमारे अंदर डेवलप हो जाना चाहिए कि सिग्नल्स का नाम आप कुछ भी दे दें, एंड रिजल्ट आपका सेम आ रहा होगा कि आर सिग्नल अगर आर जी से डिवाइड हो रही है तो वो आर सिग्नल आर जी से डिवाइड ही होते हुए आ रही होगी। इसका सिंबल चेंज होने से उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होगा। ठीक है, द सिंबल कैन बी एनी सिंबल। अच्छा, ये हो गया। अब ज़रा सा इस पार्ट को गौर से देखें। यहाँ पे आप देखें ये आपका बाईपास कैपेसिटर लगा हुआ है। एक बात ये कि ये जो करंट सोर्स यहाँ लगी है इसके साथ कैपिटल आई का सिंबल है। दिस क्लियरली इंडिकेट्स दैट दिस इज अ डीसी करंट सोर्स शुड बी एन ओपन सर्किट ड्यूरिंग द एसी और द स्मॉल सिग्नल एनालिसिस। ठीक है, मैंने इसको ओपन सर्किट करने की कोशिश की, बट एट द सेम टाइम द कैपेसिटर इन पैरेलल टू दिस करंट सोर्स वाज शॉर्ट सर्किटेड ड्यू टू द हाई वैल्यू ऑफ द कैपेसिटर एंड द हाई फ्रिक्वेंसी। तो ये कैपेसिटर जो था वो इसको ग्राउंड पे ला रहा था। अब जब ये वाली चीज़ पूरी की पूरी ओपन सर्किट हो ही रही है तो इसका मतलब है इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा इस ओपन सर्किट का कि ये जो सप्लाई से, दरअसल इस कैपेसिटर की वजह से ये टर्मिनल हकीकतन शॉर्ट सर्किट पे पहुंच जाएगा ड्यूरिंग द ये सर्किट बेसिकली कैपेसिटर के शॉर्ट होने की वजह से ज़ीरो पे पहुंच जाएगा सोर्स का वोल्टेज ड्यूरिंग द एसी एनालिसिस। मैंने इसको ओपन सर्किट किया, तो जब इस पार्ट को ओपन किया तो माइनस वी एस एस तो वैसे ही रिमूव हो गया ना, यानी ये पूरा का पूरा हिस्सा रिमूव हो गया। हुआ क्या फिर, ये कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट था, सोर्स के ऊपर ये पार्ट आ गया जो कि बचा था, ये यहाँ पे मुझे बेसिकली नज़र आ रहा है। अब मैंने क्या किया, मैंने फिर से स्मॉल सिग्नल मॉडल बना लिया मॉसफेट का। देखें ये इतना हिस्सा मॉसफेट के स्मॉल सिग्नल मॉडल को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो सबसे पहले आप बना लेंगे। सबसे पहले हम ये वाला पार्ट बनाया करेंगे हमेशा। आर नॉट ले लिया है मैंने, कंसीडर करा हुआ है इसके अंदर चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन, तो मैंने चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन वाला मॉडल बना लिया। फिर मैंने सोर्स को देखा, सोर्स मुझे ग्राउंड नज़र आया, मैंने सोर्स को ग्राउंड कर दिया। आई लुक्ड एट द गेट, मुझे गेट पे वर्टिकल रजिस्टर आरजी नज़र आया, ये गेट का टर्मिनल है, वर्टिकल रजिस्टर आरजी हो गया। गेट के ऊपर यूं करके हॉरिजॉन्टल आर सिग्नल लगा हुआ है, उसके साथ वी सिग्नल जुड़ा हुआ है, तो गेट के साथ ये रहा आर सिग्नल, ये रहा वी सिग्नल। तो ये जो बेसिकली पूरा पार्ट था एक्चुअली गेट के ऊपर, ये पूरा सर्कल वाला पार्ट ये गेट का टर्मिनल है, वो मैंने उठा के बेसिकली इस गेट टर्मिनल के ऊपर रख दिया, ये पूरा एज इट इज़ यहाँ गया। अगेन लुक एट द ड्रेन टर्मिनल। ड्रेन टर्मिनल पे देखें आर नॉट तो मौजूद है और आर नॉट का अगला एंड भी ग्राउंडेड है, ये बहुत क्लियर नज़र आ रहा है क्योंकि सोर्स ग्राउंडेड है। फाइन, ये तो इस मॉडल का हिस्सा ही है। अगले स्टेप में कह रहे हैं कि आर डी और आर एल इन दोनों का ड्रेन वाला पॉइंट कॉमन है। फाइन, इन दोनों का अगला टर्मिनल ग्राउंड है, तो दर हकीकत बोथ ऑफ देम आर अपियरिंग इन पैरेलल टू ईच अदर, और ये दोनों कहाँ लगी हैं, ड्रेन पे लगी हैं। तो मैंने ड्रेन पे आर डी और आर एल को पैरेलल बना दिया। बहुत क्लियर यहाँ दिया हुआ है कि आर एल को इंक्लूड नहीं करना है आर आउट में, आर इन के अंदर जो है वो वी सिग्नल और आर सिग्नल को इंक्लूड नहीं करना है, यहाँ से अंदर झांक कर इसके अंदर देखना है हमें। ठीक है, देखते हैं इसे, हाउ कैन वी डू दिस। Okay, we will be doing it in the next slide. Okay, so in order to find the gain of this circuit, we will again be applying Ohm's law at the output terminal. मैं इसमें भी यही किया है कि दोबारा से मैंने आपको रीड्रॉ करके सर्किट यहाँ पे दिखा दिया है। आर नॉट आर डी आर एल को हमने यहाँ पे पैरेलल ले लिया है।
Okay, so in order to find the gain of this circuit, we will again be applying Ohm's law at the output terminal. मैं इसमें भी यही किया है कि दोबारा से मैंने आपको रीड्रॉ करके सर्किट यहाँ पे दिखा दिया है। R0 RD RL को हमने यहाँ पे पैरेलल ले लिया है